Hello everyone, welcome back my channel English with Savita Agrawal. How are you my English Knights? Students, today I am going to teach you the chapter of Flamingo. This is for class 12th students who are going to appear in CBSE exams. Students, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, सिंपल नोट्स। अगर आपको मेरी इस चैप्टर की डिटेल्ड समरी जाननी है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखें। लेट्स स्टार्ट। Should we start English literature? This is for class 12th CBSE students. CBSE students have two books, Flamingo and Vistas. This is chapter 3rd from Flamingo. Students, what are you looking here? You are looking deep water. This is deep water and this is your chapter's name, deep water. Chapter's name, deep water. Deep water. Who is the author of this chapter? Definitely William O. Douglas. Notes by Savita Agrawal. Before starting the chapter, students, I would like to tell you about the author. That is William O. Douglas. William O. Douglas, he was born on October 1898. He did BA in English and Economics. Leading advocate, that is his life as a profession, he was a leading advocate and retired in 1975 from his post. Introduction of the chapter. This is an excerpt from Of Men and Mountains by William O. Douglas. This chapter reveals about a young boy, the narrator, young boy, that is the narrator, nearly drowned in the swimming pool. It is an autobiography of William O. Douglas. Autobiography. Do you know what is autobiography? Autobiography. It is made up of two words, autos plus bio plus graphy. That is, autos means self, bio means life and graphy means sketch. Do you understand what is the meaning of this word autobiography? That is the story written by someone about his life is called autobiography. That is William O. Douglas. William O. Douglas narrates his self story, the story of his life in this story.
he had a fear of water and finally overcome it by continuing practice and passion as well as determination to learn swimming. नरेटर को एक पैशन था कि मुझे आई एम टू लर्न स्विमिंग और मुझे ये करना है, और इसके लिए बट उसको तो वाटर से फियर था, तो लेकिन फाइनली वो क्या करता है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है और अपना पैशन नहीं छोड़ता, और इसके लिए फिर वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है। तो क्या होता है कि उसको अपने उसको ओवरकम कर लेता है, वो जो भी उसका फियर होता है। नाउ कम्स समरी मीन्स सारांश। The author had an aversion of water since childhood. Aversion means घबराहट। ऑथर को बचपन से ही पानी से घबराहट थी। पानी को देखकर उसका दिल घबराने लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी ओम शांति ओम, और उसमें जो शाहरुख खान था, जब वो दूसरा जन्म लेता है तो उसको आग से बहुत डर लगता था। जो सॉन्ग है देखो देखो उस वाले सॉन्ग में जब आग लग जाती है तो आग का सीन होता है, वो जब भी आग का सीन देखता था उसको डर लगने लगता था। In this chapter, the author had an aversion of water since childhood. He went with his father to the California beach at the age of 4 or 5. यानी कि लमसम इस एज में। He missed his father's hand. When he was standing at California beach, he missed his father's hand and the waves knocked at him and swept over him. द वेव्स, जो वेव्स उसके ऊपर आई और उसके ऊपर उस पर अटैक किया, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और वो वेव्स जो थी वो उसको बहाकर ले गईं। ही वॉज फ्राइटेंड वाइल हिज फादर लाफ्ड। वो तो डर गया, लेकिन उसके जो फादर थे वो हंसने लगे। सिंस देन एन एवर्जन क्रिएटेड इन नरेटर्स माइंड। तो अब उसके जो फादर थे वो तो हंसने लगे, बट तभी से ही नरेटर के माइंड में एक एवर्जन, पानी से उसको एक घबराहट सी, एक डर उसके माइंड में बैठ गया। When he grew older, approximately at the age of 9 or 10, he decided to swim. जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, नियर अबाउट 9 और 10 ईयर्स का, तो उसने सोचा कि अब मुझे स्विमिंग स्टार्ट करनी है, स्विमिंग सीखनी है। कहाँ पर सीखनी है? YMCA पूल ऑफ रिवर याकिमा रिवर थी, तो वहाँ पर उसको YMCA पूल बना हुआ था याकिमा रिवर के किनारे पर, और उसको वहीं पर उसने सोचा कि अब मुझे यहीं पर अपनी स्विमिंग सीखनी थी। अब YMCA पूल कैसा था देखिए। यू आर लुकिंग अ पूल हेयर, इट इज़ ऑन द वन एज, डीप ओनली 2 or 3 फीट। यहाँ से ये केवल 2 और 3 फीट, 2 और 3 फीट है एट द शैलो एंड, 9 फीट ऑन एट द अदर एंड। फ्रॉम हियर इट इज 9 फीट। He took a pair of wings. अब उसने क्या लिया? A pair of wings. Went to the pool. He was alone. He went to the pool where he was alone. He sat on the side here. वो यहाँ पर बैठ गया। अब एक boy came and threw him by picking him up. एक बड़ा सा लड़का आया और उसने उसको उठाया और उसको पानी में डाल दिया। टेरिफाइड, अब वो क्या हुआ था?
ऑब्वियसली कोई भी होगा तो वो डर जाएगा, बट ही डिड नॉट लूज हिज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स फेंट, होश। उसने जो उसकी अवेयरनेस थी, जो उसका, वो बेहोश हो गया। थॉट टू जंप अपवर्ड व्हेन टच द बॉटम बाय फीट। अब उसने वो जो था, उसने अपनी बेहोशी नहीं, मतलब वो बेहोश नहीं हुआ, बल्कि उसने क्या सोचा कि जब वो उसके फीट बॉटम से टच करेंगे तो वो ऊपर को, अपवर्ड मीन्स ऊपर को, ऊपर की साइड को वो जंप करेगा। फाइनली वुड लाई फ्लैट ऑन द बॉटम एंड पैडल टू द एंड ऑफ द पूल। फाइनली वो बॉटम पर सीधा लेट जाएगा और उसके बाद वो फिर वापस पूल तक पैडल मारेगा लास्ट तक। अब देखिए क्या होता है, ऑन गोइंग डाउन। अब जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, 9 फीट सीम्ड लाइक 90 फीट। जो उसके 9 फीट थे वो, अब देखिए जैसे जैसे जब ये नीचे गया, ये बॉय जो है ये नीचे जा रहा है, ये तो जंप लगा रहा है, लेकिन ये जो पूल है, पूल का ये वाला जो एंड है, ये 90 फीट है। 9 फीट उसको कैसा लगा, 90 फीट। जबकि वो कितना था, 9 फीट था, और उसको कैसा लगा, 90 फीट जैसा। ओ इतना गहरा। गैदर्ड द करेज एंड मेड अ स्प्रिंग अपवर्ड्स एंड केम अप। अब उसने ट्राई किया कि जितना भी करेज था, जितना उसको उसने गैदर किया, वो उस समय नहीं घबराया। उसको लगा कि अब मैं ऊपर छलांग मारूंगा। बट क्या हुआ, आफ्टर ओपनिंग आइज, जब उसने आंखें खोली, सॉ नथिंग बट वाटर। जब पानी में आंखें खोली तो कैसा लगा उसे, उसने कुछ भी नहीं देखा। ओनली वाटर एवरीवेयर, बट ओनली वाटर ही हैड सॉन। और एंड सफोकेटिंग मीन्स डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। और चोक्ड थ्रोट, गला घुट जाना, सांस घुट जाना। ही बिकेम पैनिक, ट्राइड टू क्राई बट नो वर्ड्स केम आउट ड्यू टू फियर। और अब उसने कोशिश की कि मैं कुछ चीखूं। जैसे हम बचपन में, एक दिन क्या हुआ, मैं जब थोड़ी छोटी थी, 9th क्लास में थी, तो मैं ऊपर छत पर गई थी और कपड़े लेने के लिए मम्मी ने भेजा, तो मैं ऊपर चली गई। बट वो उसमें जो कपड़े सुखाने हम लोग जाया करते थे, वो बकेट मैंने ऊपर रख दी। तो वहाँ पर एक वो पहले वो होती थी बच्चों, दुछत्ती को बोलते हैं गैरेट मीन्स दुछत्ती। तो उसमें क्या था, उसमें एक मंकी बैठा हुआ था। अब वो मंकी मेरे के पीछे पड़ गया और मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट मेरी आवाज़ नहीं निकली। मैंने बहुत कोशिश की, तो मैंने पूरी छत पर रनिंग की दौड़ के, तो वो बंदर मेरे पीछे पीछे दौड़ा। हिज लेग्स सीम्ड पैरालाइज्ड रिजिड। उसकी जो लेग्स थी, अब डर के मारे वो, उसको ऐसा लगा जैसे पैरालाइज्ड हो गई, बिल्कुल जाम हो गई हो। वेंट डाउन एंड डाउन, अब अ ग्रेट फोर्स। उसको ऐसा लगा जैसे वो नीचे जा रहा है, बार बार नीचे जा रहा है। एंड अ ग्रेट फोर्स, ग्रेट वेनिस्ड फोर्स, डिसअपियर फोर्स, पता नहीं, अननोन फोर्स। यू कैन से अननोन फोर्स। उसको नीचे खींच रही हो कोई असीम शक्ति और सुपर नेचुरल पावर। जैसे आपने सुना हो शेख चिल्ली की, जो वो उसकी, सॉरी शेख चिल्ली नहीं, वो वुडकटर जो था, उसकी एक्स जो थी, उसकी जो कुल्हाड़ी थी, वो नीचे गिर गई थी। तो जल के देवता आए थे, उन्होंने 1 आफ्टर 1 उसको 3 कुल्हाड़ियाँ दी थी।
गोल्ड की, आयरन की और सिल्वर की। तो उसको लगा कि जैसे कोई असीम शक्ति, सुपर नेचुरल पावर, कोई हिडन पावर उसको नीचे खींच रही हो। टू पुल हिम अंडर वाटर ट्राइड टू स्क्रीम बट फेल्ड। अब जब वो पानी के अंदर था तो उसने फिर कोशिश की चिल्लाने की, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बस उसकी आवाज़ तो आ ही नहीं रही थी। सब कुछ फेल था। बाहर वैसे भी पानी में आवाज़ कम आती है, तो उसकी आवाज़ नहीं आई थी। ओनली हिज हार्ट एंड पॉन्डिंग इन हिज हेड। उसका जो हार्ट था और उसका जो हेड था उसमें एक पाउंडिंग सी हो रही थी, लग रहा था कि हाँ वो चल रही हैं। ही सक्ड फॉर एयर। उसने, सक मीन्स होता है गेट इन, गेट इन। उसने केवल एयर को सक किया। गॉट वाटर, और पानी पिया। लुक्ड फॉर रोप। अब उसने क्या किया? लुक्ड फॉर रोप। उसने बाहर आने के लिए पानी से रोप फाइंड करी, लैडर फाइंड करी। वाटर विंग्स, बट ओनली वाटर वॉज देयर। अब पानी के अंदर तो पानी ही होगा कि बिकॉज ही वॉज इन द वाटर। कहाँ था वो? पानी में था। कमिंग आउट ऑफ वाटर। अब देखिए उसने बाहर से आने लगा और उसने फेल्ट किया आइज एंड नोज आउट ऑफ वाटर की। उसको लगा कि उसकी आइज और नोज दोनों पानी से बाहर हैं। नाउ ही रिमाइंड अबाउट लीप बट ऑल इन वेन। उसे ध्यान आया कि वो तो लीप करने का सोच रहा था। लीप मीन्स स्प्रिंग और जंप और बाउंस। उसने सोचा कि मुझे तो जंप करना था, बाउंस करना था, बट ऑल इन वेन। ऑल इन वेन मीन्स वेस्ट, सब कुछ बेकार रहा। फेल्ट गोइंग टू डाई, सीज्ड ऑल एफर्ट, फेल्ट गोइंग टू कॉन्शियस। अब नाउ ही फेल्ट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। अब वो मर जाएगा। एंड ही सीज्ड ऑल एफर्ट। सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड, सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड। अब उसने सारे एफर्ट जो थे वो स्टॉप कर दिया। उसने छोड़ा कि अब मरना तो है ही। फेल्ट गोइंग टू अनकॉन्शियसनेस, और अब वो अनकॉन्शियसनेस मीन्स फेंट। अब वो फेंट होने जा रहा था। उसने सोचा अब तो बेहोश हो जाएगा। नाउ ही रिगेन्ड अनकॉन्शियसनेस लाइंग ऑन हिज स्टमक नियर द पूल। अब उसको बेहोशी छा गई, बट जब वो होश में आया आफ्टर regaining consciousness, he saw he was lying on his stomach near the pool। अपने पेट के बल उल्टा लेटा हुआ है और क्या कर रहा है वो? वॉमिटिंग। द बॉय स्टैंडिंग बिसाइड हिम। वो बॉय जिसने कि उसको नीचे फेंका था। He was standing beside him. Beside means by side, that is बराबर में। वो जो लड़का था जिसने उसे फेंका था पानी में, उसके बराबर में खड़ा हुआ था। ये देखिए, here the narrator is in water and he is going to die. The boy said, the boy said, I was just fooling। मैं तो तुम्हारा मूर्ख बना रहा था। अब उसके बाद में वो वापस आ गया और फिर वो कभी भी वहाँ पर नहीं गया। Walked back to his home but weak and his legs trembling। अब जब वो अपने घर आ गया वापस से, तो उसने क्या देखा कि he was feeling weak and his legs trembling। trembling means shaking। उसकी जो टांगे थी वो कांप रही थी। आफ्टर दिस इंसिडेंट a haunting fear। अब देखो क्या क्या चेंजेस आए इसमें। a haunting fear, haunting fear, fear from water। उसको पानी से डर लगता था। कंटिन्यू, जैसे ही वो पानी को देखता था तो उसको
डर लगने लगता था। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था किसका, ओम शांति ओम मूवी का, जिसमें कि शाहरुख खान को आग से डर लगता था। तो वो हॉन्टिंग मीन्स चेजिंग और रनिंग बिहाइंड। फियर ऑफ वाटर, और किस चीज का हॉन्टिंग फियर था ये, फियर ऑफ वाटर। नाउ द ईयर्स रोल्ड बाय, डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता चला गया टाइम। अब उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू प्रैक्टिस फॉर 5 days a week, एंड फॉर दिस ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, अब देखो, हु टॉट हिम स्विमिंग स्टेप बाय स्टेप। अब उसने इंस्ट्रक्टर हायर किया जिसने कि उसको स्टेप बाय स्टेप, आज ये, कल ये, परसों ये, फिर ये, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसने सिखाया कि पानी से कैसे उतरेंगे। अब उसने क्या सिखाया, देखिए, इनहेल मीन्स ब्रीद इन, एक्सेल मीन्स ब्रीद आउट। सांस बाहर लेना, सांस अंदर करना। रिपीटेड एक्सरसाइज 100 times एंड ही हैड डन दिस एक्सरसाइज 100 times। पता नहीं कितनों बार उसने यही एक्सरसाइज रिपीट की। नाउ टू ओवरकम हिज फियर, ओवरकम मीन्स होता है टू विन और टू गेट विक्ट्री। हिज फियर, अब देखिए उसने क्या किया, ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। वो लेक वेंटवर्थ जो कि न्यू हैम्पशायर में थी वहां पर गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, उसने ट्रिक्स आइलैंड पर डाइव किया। डाइव मीन्स होता है गोता लगाना। स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक, ये जो लेक थी, लेक वेंटवर्थ, वहां पर उसने 2 miles अक्रॉस, उसको पार करके 2 miles उसने डेली उसको क्रॉस किया। एक्ट आइलैंड पर जो लेक थी उस पर उसने 2 miles अक्रॉस किया। ओनली फेल्ट सम फियर इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो मिडल में जाता था लेक के तब उसको कुछ फियर होता था। फाइनली ओवरकेम हिज फियर, स्वम बैक। फाइनली उसने क्या किया, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। तो ऐसे ही उसने भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी और फाइनली ही ओवरकेम हिज फियर। स्वम बैक में स्विमिंग की, ऐसे स्विमिंग की, फिर ऐसे स्विमिंग की उसने बैक में। शाउटेड विद फियर, अब जो उसका फियर की वजह से उसकी जो शाउट निकलती थी उसको ओवरकम किया। कन्क्वेर हिज फियर ऑफ वाटर, और conquer means to win or get victory. His fear of water, अपने पानी से जो उसका डर था उसको conquer किया और फिर finally he learned swimming. फाइनली उसने उसको स्विमिंग को लर्न किया। तो बच्चों, आपको ये मेरे वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। अगर आपके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को देखें, और अगर आपको मेरी
इस वीडियो की, इस चैप्टर की डिटेल्ड समरी देखनी है तो मेरी आने वाली वीडियो जो कि मैंने ऑलरेडी बना ली है, बस वो अपलोड करनी बाकी है, तो वो मैं आपको इसका डिटेल्ड चैप्टर को प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उसको देख लीजिए। अगर वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, केवल आप वीडियो को देखकर चले जाएंगे ना, अब तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।